Good morning, students of class 4th. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn the page to page 97 as I'll be starting with Unit 25, Interjections. Students, please take out your English grammar book, turn the page to page 97 as I'll be starting with Unit 25, Interjections. Students, in my last video, I had completed the exercises of Unit 24, Simple Future Tense, and I'm sure everybody must have completed it. And today, students, I'm going to start with Unit 25, Interjections on page 97. Now, students, what do you mean by interjections? Now, students, words that are used to express sudden emotions or feelings of the speaker, they are called interjections. वो words जिनसे हमारे sudden emotions express होते हैं उनको हम interjection बोलते हैं. Fine. They are usually followed by an exclamation mark. और बेटा उनके बाद exclamation mark आता है. All of you know ये कौन सा mark है? This is known as the exclamation mark. Fine. और interjections are always followed by an exclamation mark. Fine. Interjections are followed by exclamation mark. And interjections are used to express sudden emotions. और ये कौन से emotions होते हैं? Emotions of surprise, happiness, pain, joy, pleasure, है ना, pity, है ना, कुछ भी हमने देखा और हमारे मुंह से कुछ निकला, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं और आपको इंजेक्शन लगा है, द मोमेंट यू फील द प्रिक, आपके मुंह से क्या निकलता है? आउच. वो आपका इमोशन है पेन का. तो वो जो आउच वर्ड है बेटा, दैट इज एन इंटरजेक्शन. आउच के बाद क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क. और ये आउच क्या है? इंटरजेक्शन. फाइन. आप सपोज घर गए हो and you see that your mother has baked a nice cake with beautiful icing, yummy cake. तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? Wow. What is wow? Wow is again interjection. So words which express are sudden emotions. And emotions कौन से? Emotions of happiness, joy, pain, surprise, pleasure, sadness. पिटी. पिटी मीन्स हम किसी पे दया करते हैं. तो ये इमोशंस हमारे जो वर्ड सडनली हम एक्सप्रेस करते हैं, ये सब क्या है? इंटरजेक्शंस. एंड स्टूडेंट्स, जनरली इंटरजेक्शंस, जो आई एम सेइंग जनरली, दे कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. फाइन. सो interjections are words which are used to express sudden emotions of the speaker. Speaker के जो sudden emotion जिन words से बेटा पता चलते हैं वो interjections हैं. And they are usually followed by an exclamation mark. और ये exclamation mark तो सबको पता ही है ना? एक ऐसी डंडी और इसके नीचे डॉट. This is known as the exclamation mark. और exclamation marks interjections के बाद लगता है. एंड जो interjections है वो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं. फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ पिटी, फीलिंग ऑफ सरप्राइज, फीलिंग ऑफ जॉय, ये सब हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? इंटरजेक्शन से. फाइन. नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. फाइन. नाउ examples of interjection. Fine. The first example. Oh, I forgot my wallet. Oh, I forgot my wallet. ठीक है. अब oh, I forgot my wallet, इसमें इंटरजेक्शन क्या है? ओ. इसके बाद क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है. कभी ऐसा होता है हम कुछ भूल गए, हमारा कोई सामान खो गया, तो हमारे मुंह से निकलता है ओ. ये ओ हमारी
जो इमोशंस उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अरे निकलता है कि नहीं से, ओ अरे मैं तो अपना पर्स घर पे भूल आया. सो दैट ओ इज what? Interjection. You can see there's an exclamation mark after the interjection and then the rest of the sentence, and at the end क्या आता है बेटा? Full stop. Clear? So O क्या है? O again is interjection. Then let's look at the next example. Wow. Wow. This poem is heart touching. हार्ट टचिंग का मतलब क्या होता है बेटा? दिल को छू लेने वाली. सो वाव, दिस पोएम इज हार्ट टचिंग. इसमें वाव क्या है? इंटरजेक्शन. बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है ना. Wow, this poem is heart touching. तो wow क्या है? Wow is again interjection. Then wow हमारे सरप्राइज को, हमारे वंडर को एक्सप्रेस कर रहा है. ठीक है. Then the next is ouch. Ouch. I stepped on an iron nail. Ouch! I stepped on an iron nail. कभी कभी हम वॉक करते हैं और हमारे पाँव में या तो कोई थॉर्न या यहाँ पे आयरन नेल लोहे की कील पे अगर आपका पाँव रख दिया आपने तो वो बहुत क्या करते हैं? आपको पेन होता है. एंड द मोमेंट आपको पेन होता है, कोई आपको पिंच कर दिया, किसी ने आपको इंजेक्शन प्रिक किया, सो आपके मुंह से क्या निकलता है? आउच. तो आउच क्या एक्सप्रेस कर रहा है? आउच आपका पेन एक्सप्रेस कर रहा है. जैसे आपको दर्द हुआ तो आपके मुंह से आउच निकला. व्हाट इज आउच? आउच इज अगेन इंटरजेक्शन, है ना. सो आप देख रहे हो, ओह वाओ, आउच. These are all interjections. These are the words which express your sudden emotions. Fine. And they are always followed by an exclamation mark, and they generally come at the beginning of the sentence. Then the fourth example is bravo, you will win the contest. Bravo, you will win the contest. अब ब्रेवो कब यूज करते हैं बेटा? ब्रेवो यूज करते हैं टू प्रेज अ परफॉर्मर. किसी ने कोई अच्छा काम किया है, उसकी तारीफ करने के लिए, उसको प्रेज करने के लिए ब्रेवो, यू विल विन दी कॉन्टेस्ट, है ना. एट टाइम्स होता है कि आपने कुछ बहुत अच्छा, सपोज आपने किसी कंपटीशन में फर्स्ट आए हो या आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हो या आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको प्रेज करने के लिए क्या बोलते हैं? ब्रेवो, you did very well, या bravo, you will win the contest. To praise a performer, किसी को तारीफ करने के लिए, किसी का उत्साह मतलब किसी को मोटिवेट करने के लिए कि वो और अच्छा करे, कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं बेटा? ब्रेवो. ब्रेवो, you will win the contest. Then the next one is the baby is sleeping. Fine. अब यहाँ पे अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई सोता रहता है तो बोलते हैं the baby is sleeping. आप लाइब्रेरी में जाते हो, वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा होता है साइलेंस प्लीज, बट व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग, यू स्टार्ट मेकिंग नॉइज, टीचर व्हाट डज द टीचर और द मॉनिटर सेज? साइलेंस प्लीज बोलते हैं. तो ये जो है, this indicates that you need to
मेंटेन साइलेंस, ये क्या है? दिस इज अगेन इंटरजेक्शन. फाइन. सो द बेबी इज स्लीपिंग, है ना? यू कैन सी इन द पिक्चर द बेबी इज स्लीपिंग. सो आप कौन सा इंटरजेक्शन यूज करोगे? है ना? सो दैट इट इंडिकेट्स दैट यू नीड टू कीप साइलेंस. देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज yippee we won the match. कभी कभी हम जब मैच वगैरह स्पेशली स्पोर्ट्स खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं और हम जीत जाते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? yippee we won the match, है ना? या हुर्रा our team won the match. तो ये जो yippee है, हुर्रे है, ये एक्सप्रेस करते हैं जॉय. What do these words express? Joy, encouragement, है ना? yippee we won the match. तो ये yippee, हुर्रा, ये सब क्या है? These are again interjections. Fine. Then suppose you have a pet and you are unable to find the pet. तो आपका जो दुख है वो आप किस वर्ड से यूज करोगे? alas. alas, my cat is missing. तो हम अपना जो ग्रीफ है, जो दुख है, वो किस वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं? किस इंटरजेक्शन से? alas, my cat is missing. फाइन. सो अभी आपको समझ में आया होगा इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स विच एक्सप्रेस योर इमोशंस ऑफ जॉय, पेन, ग्रीफ, सरप्राइज, प्लेजर, है ना? तो ये इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस करते हैं. फाइन. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दीज एग्जाम्पल्स एंड राइट सम मोर एग्जाम्पल्स सो दैट the concept gets more clear to you. Now the eighth one. Fine. The eighth one is hurrah. Hurrah. We won the match. अब हम मैच जीत गए हैं. As I said, हम कौन कौन से इंटरजेक्शंस यूज करते हैं? yippee, हुर्रा, है ना? टू शो आर एक्साइटमेंट, टू शो आर जॉय, टू शो आर प्लेजर. हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज किए? हुर्रा. एंड ये yippee, हुर्रा, ये सब जॉय और एनकरेजमेंट बेटा एक्सप्रेस करते हैं. यू कैन सी दे आर फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. दे कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. देन हमने सपोज एक बहुत सुंदर रोज का फ्लावर देखा तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? वाव. क्या निकलेगा? वाव. व्हाट ब्यूटिफुल रोज इट इज. तो ये वाव क्या है? वाव इज अगेन इंटरजेक्शन एंड ये हमारा एक्साइटमेंट एंड वंडर शो कर रहा है. फाइन. देन alas, the old man has passed away. है ना? किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? alas, है ना? हमारी कोई चीज सपोज वी हैव लॉस्ट समथिंग तो हम दुखी होते हैं तो हम उसके लिए कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं बेटा? alas. ठीक है. कितनी बार आप लोग नाइफ से फिडल करते हैं, ठीक है, और आप लोगों के हाथ में कट जाता है. सपोज आपकी फिंगर कट जाती है नाइफ से फिडल करते करते, आपके मुंह से क्या निकलता है? आउच निकलता है कि नहीं? आउच. आउच. आई कट माई फिंगर.
तो ये ouch क्या है? Ouch is again interjection. This expresses your pain. Fine. So I hope अभी इतने एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि what are interjections? Interjections are words that express sudden feelings or emotions of joy, happiness, sadness, pain, grief, surprise, wonder. Clear? And remember, interjections are always followed by an exclamation mark, and generally they come at the beginning of the sentence. Fine? 3 चीजें याद रखनी है. इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सडन इमोशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं. वो इमोशंस दुख के हो सकते हैं, सुख के हो सकते हैं, दर्द के, पेन के हो सकते हैं, सरप्राइज के हो सकते हैं, वंडर के हो सकते हैं, है ना. सो वो हमारे जो फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं वो इंटरजेक्शन. सेकेंड इज interjections are generally followed by an exclamation mark. And third point is generally interjections come at the beginning of the sentence. Fine. So अभी इतने एग्जाम्पल से सबको समझ में आ गया होगा बेटा. Fine. Now let's start with exercise 1. Exercise 1. Read these sentences and underline the interjections. Read these sentences and underline the interjections. Now, the first one. Oh, I forgot my wallet. इसमें interjection कौन सा है बेटा? O. So underline O. Everybody underline O. O, I forgot my wallet. इसमें सब O को underline करो. O interjection है followed by an exclamation mark coming at the beginning of the sentence and expressing your sudden emotion. Then the second one. Wow. Wow. This poem is heart touching. Wow, this poem is heart touching. Interjection कौन सा है? Wow. Underline wow. Underline wow. Wow, this poem is heart touching. Please underline wow. Then the third one. Ouch. I stepped on and iron nail. Ouch! I stepped on an iron nail. इसमें interjection कौन सा है? Ouch. Ouch expresses your pain. Then the fourth one. Bravo. You will win the contest. Bravo, you will win the contest. इसमें इंटरजेक्शन कौन सा बेटा? Bravo. Then the fifth one. Shh. The baby is sleeping. Which is the interjection? Shh. Because हमारा ये interjection हमारा emotions express कर रहा है बेटा. To be quiet and followed by exclamation mark coming at the beginning of sentence. So shh is what? Again
interjection. Then the last one of this exercise is yippee. Yippee, we won the match. इसमें interjection कौन सा है बेटा? Yippee. So underline yippee. Fine. So with this we have finished exercise 1. Again I am repeating. Please tell me. First one, oh, I forgot my wallet. इसमें interjection कौन सा है? Oh. Second, wow, this poem is heart touching. Interjection कौन सा है? Wow. Third, ouch, I stepped on an iron nail. Interjection कौन सा है? Ouch. Fourth, bravo, you will win the contest. Interjection कौन सा है? Bravo. Fifth, shh, the baby is sleeping. Interjection कौन सा है? Shh. And sixth, yippee, we won the match. Interjection कौन सा है? Yippee. So I hope everybody has underlined the interjections in the first sentence, students. So now I'm going to erase the board and start with exercise 2. Now, let's see what exercise 2 is about. Now exercise 2, what we need to do is, we need to match the interjections with the feelings they express. Match the interjections with the feelings they express. अब बेटा मैं एकदम करेक्ट जो interjections और उनके जो फीलिंग्स एक्सप्रेस है, आई बी राइटिंग द करेक्ट वन इन फ्रंट. मैं एकदम सामने सामने लिखूंगी एंड यू विल मैच इन योर बुक. मैं एकदम जो इंटरजेक्शन और वो जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं वो मैं उसके सामने लिखूंगी. नाउ दी फर्स्ट वन. फर्स्ट वाला क्या है? अलास. फाइन. सो व्हाट डज अलास मीन? अलास का मीनिंग हम कब यूज करते हैं? जब हम अपना दुख एक्सप्रेस करते हैं, हम अपनी सैडनेस एक्सप्रेस करते हैं. फाइन. तो सैडनेस और दुख को इंग्लिश में ग्रीफ बोलते हैं. फाइन. सो आई विल राइट, वी यूज अलास टू, इसके सामने कौन सा आएगा? टू एक्सप्रेस ग्रीफ. फाइन. फर्स्ट वाले को हम किससे मैच करेंगे? ई से. अलास कब यूज करते हैं बेटा? सॉरी आई फॉरगॉट टू पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क. तो हम अलास कब यूज करते हैं? अलास इज यूज टू एक्सप्रेस ग्रीफ. ग्रीफ मतलब हमारा दुख, है ना. किसी की डेथ हो जाती है, हम कोई एक्सीडेंट देखते हैं, तो कोई भी जैसे जब दुख होता है हम अपनी सैडनेस एक्सप्रेस करते हैं. किस वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं बेटा? अलास. So alas is used to express grief. Then the second one is bravo. Bravo, and remember we need to put an exclamation mark after the interjection. Now bravo. Bravo कब यूज करते हैं? To praise a performer. F वाला. To praise a performer. कोई अच्छा काम करता है उसको हम प्रेज करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए हम क्या बोलते हैं? ब्रेवो. सो ब्रेवो इज यूज टू प्रेज अ परफॉर्मर. सेकेंड इज एफ. फाइन. नाउ द थर्ड वन, दैट इज ouch. हम ouch कब यूज करते हैं? we use ouch. हम ouch यूज करते हैं
जब हमको दर्द होता है, एकदम से हमको कुछ चुभता है, हमको दर्द होता है, तो वी यूज आउट टू एक्सप्रेस सडन पेन, टू एक्सप्रेस सडन पेन। ठीक है, हम आउच कब यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस सडन पेन, है ना। तो थर्ड का ए है टू एक्सप्रेस सडन पेन। फाइन, देन वी फोर्थ वन, और फोर्थ वाला क्या है बेटा? एस डबल एच को हम बोलते हैं, और ये हम कहाँ करते हैं? टू बी, दैट इज किसी को जब हमको चुप कराना होता है ना, साइलेंस मेंटेन कराना होता है, तो हम क्या बोलते हैं? जनरली बोलते हैं कि नहीं? टीचर क्लास में बोलती है ना, स्टॉप टॉकिंग, मेंटेन साइलेंस। लाइब्रेरी में बोला जाता है डोंट टॉक। तो इसके लिए हम लिखेंगे टू रिक्वेस्ट फॉर साइलेंस, टू रिक्वेस्ट फॉर साइलेंस। फाइन, तो हम कब यूज करते हैं? टू रिक्वेस्ट फॉर साइलेंस। डन। नाउ द फिफ्थ वन, दैट इज चीयर्स। चीयर्स, अब आपने देखा है ना, कुछ भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो स्पेशली हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ ऐसे ग्लास में डाल के दोनों ग्लास ऐसे करते हैं, चीयर्स, टोस्ट करते हैं ना। सो टू यूज्ड एज अ सैल्यूटेशन और टोस्ट, तो चीयर्स का है एच, यूज्ड एज अ salutation or toast, used as salutation or toast, especially when we celebrate something. Then the sixth one is wow. Wow. Wow, to show excitement or wonder. C1, to show excitement or wonder. To show excitement or wonder. To show excitement or wonder. हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम बहुत सरप्राइज होते हैं, तब हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं? वाह। तो नेक्स्ट इज हुर्रा, और हुर्रा हम कब यूज करते हैं बेटा? टू एक्सप्रेस जॉय और एनकरेजमेंट, दैट इज डी। टू एक्सप्रेस जॉय or encouragement, to express joy or encouragement. Then the last one is hey. किसी को हमें अपना ध्यान किसी को अपनी तरफ खींचना होता है तो हम क्या बोलते हैं? हे, कम हियर बोलते हैं कि नहीं? हे, लिसन टू मी। तो जी, टू कॉल अटेंशन, और कभी कभी हम खुशी में भी हे बोलते हैं कि नहीं? हे, है ना। और किसी से मिले बहुत दिन बाद तो मुंह से निकला है हाउ आर यू, बोलते हैं कि नहीं? सो टू कॉल अटेंशन और टू एक्सप्रेस जॉय, टू कॉल अटेंशन और टू एक्सप्रेस जॉय। फाइन, सो विद दिस we have finished our exercise 2. Fine. Now once again I'll repeat, students. Alas, when do we use this? We use to express the feeling of grief. Grief मतलब हमारा दुख व्यक्त करने के लिए एक्सप्रेस करते हैं. Bravo, F.
to praise a performer, किसी की तारीफ करने के लिए हम यूज करते हैं. थर्ड, ouch. A to express sudden pain, जब हमको दर्द होता है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ouch. Then fourth is shh, that is to request for silence, शांत रहने के लिए यूज करते हैं. Then fifth is cheers, we used as a salutation or toast, कुछ चीज सेलिब्रेट करने के लिए हम cheers करते हैं. Then sixth is wow, see to show excitement or wonder, wonder मतलब surprise और excitement उत्साह दिखाने के लिए अपना. Then the seventh is hurrah, that is D, to express joy or encouragement. Fine. Then the last one is hey, that is used to call attention or to express joy. So students, that's all for today, and I'll be continuing the remaining exercise of this unit in my next video. Till then, please do learn and revise all the taught exercises as your exams are approaching, and you really need to perform well. Work hard, children. Perform well. Thank you, students. Have a good day ahead.